So now we will be going for difficult entries of partnership. When a new partner is admitted, so some difficult entries are passed. We are going for that difficult entries. Partners capital count ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Workman compensation fund is given on the liability side. So there are three treatments for this. We will learn each of them one by one. So beta first है workman compensation fund, balance is given to us on the liability side, that is 5,000. This is case 1 which I am doing. This is case 1. We write here C1 case 1 case 1. This is case 1. Liability workman compensation fund given है 5,000. This is on the liability side of the balance sheet. नीचे adjustment के अंदर in adjustment nothing is mentioned about workman compensation fund. What we will do, we will distribute this workman compensation fund in old partners in their old ratio. So what we have done, workman compensation fund debit to A to B. कोई liability नहीं है इसका मतलब, there is no liability, so whole amount of workman compensation fund is distributed just like we distribute Janazav or P&L. The next important thing, the case 2 comes. This is case 2. Case 2, what did it say case 2? Case 2 the which under the case 2 workman compensation fund is given on the liability side of the balance sheet, as well as there is liability on account of workman compensation fund. It is given beneath the balance sheet in the adjustments. This amount is given. This is the difference. First case there was no liability was given. The second case when liability is given but liability is less than workman compensation fund. Third case when liability is more than workman compensation fund given in the balance sheet. These are the three cases. Case 1, no liability is given, whole amount is distributed. Case 2, liability is there but it is less than workman compensation fund. So what will we do in the second case? Total amount is 5,000. 5,000 is our workman compensation fund. 5,000 में से 2,000 बेटा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर माइनस कर दिया, लाइबिलिटी छोड़ दी और जर्नल एंट्री रिमेनिंग की डालेंगे. रिमेनिंग कितना रह गया बेटा? रिमेनिंग अमाउंट इज 3,000. तो 3,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी. जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पर वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखेंगे. कितना लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड? तो हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखेंगे 2,000 रुपीज. जितनी ये लाइबिलिटी है इतना ही हम न्यू बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखेंगे भी, क्योंकि अगर ये 2,000 की हम लाइबिलिटी दिखाएंगे तो हमारा ये बात बनेगी. ये दो केसेस बेटा हमारे हो गए. अब हम करेंगे तीसरा केस. ये तीसरा केस आ गया. वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है एंड द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5,000 आ गया एंड द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज मोर देन द फंड. पहला था नो लाइबिलिटी, दूसरा था लाइबिलिटी वाज देयर बट द अमाउंट वाज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन. दिस इज थर्ड केस व्हेन लाइबिलिटी इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन फंड. तो जब लाइबिलिटी ज्यादा है तो फिर क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं करना, रिवैल्यूएशन में आएगा. वर्कमैन कंपनसेशन 5,000 है और जो लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड है दैट इज 8,000. तो 8,000 इज मोर देन 5,000. तो जो डिफरेंस रह गया बेटा वो हम रिवैल्यूएशन में डालेंगे और रिवैल्यूएशन से हम क्रिएट कर लेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की तरह जैसे हम कर रहे थे. तो दिस अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन workman compensation fund in the revaluation debit as well as in the balance sheet. This workman compensation fund will increase to rupees 8,000. 5,000 जो पहले था वो वाला plus 3,000 जो हमने revaluation के through arrange generate किया extra, ये both will be appearing in the new balance sheet. This is all about workman compensation fund. ऐसा ही बेटा एक और चीज है जिसके बारे में हम सीखेंगे नेक्स्ट में, that is investment fluctuation reserve. This is another technical point. तो आप बड़े ध्यान से समझना, इसका टेक्निकल पॉइंट है ये बेटा. इसमें थोड़ी सी दिक्कत भी आती है, अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो ही समझ आएगा. ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं पहले बता के चल रहा हूँ. अब आप ध्यान से देखना कैसे बनता है बेटा. आपकी इन्वेस्टमेंट है 12,000. 12,000 इज गिवन इन द बैलेंस शीट. ओके.
वो कहता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस टू 15,000, मार्केट वैल्यू बढ़ गई, 3,000 बढ़ गई, 12,000 थी, 3,000 हमारी वैल्यू बढ़ गई तो वेरी नाइस। तो हम इसको रिवैल्यूएशन में लिख लेंगे कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, एसेट इंक्रीजेस बाय ₹3,000, हमने लिख दिया बढ़ गई। और ये बेटा हमारी बैलेंस शीट आ गई, 12,000 पहले था, 3,000 ये बढ़ गई 15,000 रुपए। तो वेरी नाइस, ये तो हमें पता था, इसमें क्या नई चीज सीखी? नहीं, इट्स न्यू। इसके सामने बेटा हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है। तो जब वैल्यू बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नॉट रिक्वायर्ड, अगर घट जाती तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाज रिक्वायर्ड। इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट decreases, then we firstly utilize investment fluctuation reserve. अगर investment fluctuation reserve कम हो, then we use it from revaluation. We will do in the next cases. So this is a case one. Value of investment, market value of investment increases from the book value. तो 12,000 आपकी book value थी, market value 15,000 होगी, investment की value 3,000 बढ़ गई, तो new value is 15,000। ये तो ठीक है, ओके है। लेकिन जो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा था, ये फिर जैसे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता था वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ए टू बी इन ओल्ड रेशो इन ओल्ड पार्टनर्स, एंड दीज टू अमाउंट्स विल बी अपीयरिंग ऑन द credit side of A and B. The first case about treatment of investment fluctuation reserve, ये तब होता है when the amount of investment, market value of investment is more than the book value. अगर वैल्यू इंक्रीज करे, अगर वैल्यू डिक्रीज करेगी तब हम नया केस सीखते हैं। दूसरा देखो, ये दूसरा केस आ गया बेटा, केस टू। दिस इज केस टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, केस टू। तो जब हम केस टू करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखिए 12,000 है। वी हैव इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ ₹12,000। 12,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 8,000, डिक्रीजेस। हाउ मच इट डिक्रीजेस? इट डिक्रीजेस बाय ₹4,000। 12,000 book value, market value is 8,000, so the book value of the investment decreases to 4,000। अगर आप इधर देख पा रहे हैं तो there is investment fluctuation reserve of ₹5,000। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ज्यादा है इस अमाउंट से, अगर ज्यादा है तो हम इसमें से सेट ऑफ कर लेंगे, 4,000 हम यहाँ से ले लेंगे और जो बाकी रिमेनिंग 1,000 रह गया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो 1,000 बच गया वो यहाँ से आया। कई लोग इसकी ऐसे भी एंट्री डालते हैं बेटा, आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, पूरा अमाउंट लिख लें 5,000 टू इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ कर दी बेटा 4,000 की, इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ कर दी 4,000 की। बाकी कितना रह गया? बाकी रह गया बेटा हमारे पास 1,000, और दैट 1,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी। टू ए 600 ओल्ड रेशियो में बेटा, टू बी 400। ऐसे बेटा ये एक एंट्री हमने, ये दो एंट्रियां हैं बेटा, वैसे तो हमने एक डाली हुई है इधर, ये दो एंट्रियों का कॉम्बिनेशन है। अगर आप अलग अलग करना चाहते हो तो अलग अलग भी हो जाती है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 4,000 एंड देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ए टू बी। तो अगर आप इकट्ठा डालना चाहे तो इकट्ठा डालने, और जब बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में बेटा न्यू वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आएगी। ये बेटा दूसरा केस है। तीसरा केस है वैल्यू गिरेगी, लेकिन इतनी गिरेगी कि आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसमें कम पड़ जाएगा। तो जब कम पड़ जाएगा तो फिर हम रिवैल्यूएशन से लेंगे जितना कम पड़ जाएगा। देखें थर्ड केस बेटा हमारा, तो जब हम थर्ड केस करते हैं, ये आ गया आपके पास केस 3,
आपकी स्क्रीन पर है, देखें ध्यान से। केस 3 बेटा, यही मुश्किल केस है बेटा। इसके तीसरा केस, आपकी मार्केट बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है 12,000, आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन है 4,500, तो 12,000 में से 4,500 गया तो डिफरेंस रह गया 7,500 की डिक्रीज होगी। This decrease is much more than your investment fluctuation reserve. तो 7,500 की आपकी डिक्रीज हुई, which is not able, this investment fluctuation reserve is not able to mitigate this loss. तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा लॉस है 7,500 की डिक्रीज होती है, 7,500 में से 5,000 तो हमने यहाँ से ले लिया, और जो रिमेनिंग 2,500 है दैट विल बी टेकन फ्रॉम रिवैल्यूएशन के डेबिट में। 7,500 का टोटल लॉस हुआ, 7,500 में से 5,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से सेट ऑफ किया, और जो रिमेनिंग रह गया 2,500 दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम रिवैल्यूएशन, एंड द मार्केट वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड इन द न्यू बैलेंस शीट एट रुपीज 4,500। कैसे? टोटल 12,000 था, 12,000 में से 5,000 ये माइनस हो गया, तो रह गया 7,000, 7,000 में से 2,500 चला गया, तो रह गया 4,500। दिस इज द वे टू शो। ये 3 केसेस है बेटा हमारे, जिससे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको ये समझ आ जाती है तो इससे बढ़िया आपका कोई तरीका नहीं है। ये मैंने आपको करके दिखाई है, ये तीनों तरीके करे हैं, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, इतनी ज्यादा कम भी